Jai Hind students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 14, source of energy. Till now what we have completed is the electricity and the magnetic effect of electric current. I have discussed their in-text questions, their NCERT back exercise numericals, along with some few important past year questions and LC. I hope you all have completed your LC and class notes. So get ready with it in a PDF format and send it to my personal email ID so that you can have a cross check of that also. In the situation of this pandemic, we will cross check in the digital manner. So what we have to study in this chapter number 14, that is sources of energy. It's a basically environmental science chapter. Due to the Paris Climate Agreement, all the nations have to be bind for the world community to bring the Earth's temperature not to be greater than 2 degrees Celsius. In order to comply with that agreement and to keep our Earth safe and reserved for the future generation, Sustainable Development Goal Agenda were also be there, which you have studied in geography chapter 1, sustainable development goals. So what we are going to study new in this chapter actually in this chapter we are going to search about some alternative ways, not the conventional ways. Conventional means the type of energy which we are consuming is basically a conventional form of energy. In fact, we are extracting crude oil, we are extracting coals from mines and making through a transportation. We take it from one place to the another place. Then there are power plants, and in that power plants there are refineries also, which make them to produce electricity. This type of process is known as thermal power plant. In fact, if you generate the electricity with the help of water, that is a डैम. आप डैम लगाते हैं, डैम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. एंड यू विल गेट टू नो दैट कि अपना जो नेबर कंट्री है भूटान, हमने वहाँ पर भी एक डैम को इस्टेब्लिश किया, पूरी फंडिंग करने के बाद हमने भूटान से ये कहा कि सर आप इसकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है आप अपना कंज्यूम के लिए ले लीजिए, बाकी का हमें सरप्लस अमाउंट में जो आपके पास प्रोडक्शन हो रही है उसको आप मुझे सोल्ड आउट कर दीजिए. बाय दिस वे द इकॉनमी ऑफ भूटान एंड इंडिया एंड द रिलेशन बिटवीन द भूटान एंड इंडिया आर ग्रोइंग. सो कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. Now what are the characteristics of a good source of fuel? Actually the fuel have energy, but what are the good sources? How will you identify, how will you discriminate from the good source and bad source? First one is that it should have a high energy output per unit mass or volume. सिंपल सा मतलब इसका ये है, इफ़ यू टेक अमाउंट ऑफ 1 kg ऑफ कोल, अब कोल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट. तो कौन सा कोल आप लेंगे कि आपको 1 किलो बर्न करने के बाद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, दैट कोल विल बी दी बेस्ट सोर्स और इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल. सारे ही आपको एनर्जी देंगे, विटामिनस भी देगा, एंथ्रासाइड भी देगा, लिग्नाइट भी देगा, पर बढ़िया कौन सा है, बात इसकी है. बढ़िया एंड कॉस्ट इफेक्टिव, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड to distinguish between the different types of alternatives. Now the second point is it should be easily available. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हुए कश्मीर में और आप ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मंगा रहे हैं. इट्स अ वेरी कॉस्टियर प्रोसेस. थर्ड, इट शुड बी easy to store and transport and it should also be economical.
सो आई होप कि ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, और इन 4 पॉइंट्स में आपने कुछ थोड़ा सा जाना होगा कि हाउ विल वी से दैट दिस सोर्स ऑफ एनर्जी और दिस सोर्स ऑफ फ्यूल इज़ अ वेरी गुड फ्यूल एंड हाउ इट्स अ बैड फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू कम हुई, एनर्जी आउटपुट की वैल्यू कम हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ दैट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द सोर्सेज। So basically you have studied this in your earlier childhood class also. There are two sources. First one is conventional, other is non-conventional. Conventional means जो सालों से चले आ रहे हैं पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, फाइनली कहीं जाकर के ख़त्म हो जाएंगे, such as wood, flowing water, fossil fuels. Flowing water means आप वाटर तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साफ़ सुथरे अच्छे जल की, मतलब पीने लायक पानी। पानी तो चारों तरफ है, समंदर में भी है, पर उस पानी का हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वुड, फ्लोटिंग वाटर, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, तो ये सारी चीज़ें कन्वेंशनल होती है। वहीं नॉन कन्वेंशनल पे अपन अगर बात करें तो जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी। ओशन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट था बीटेक में, तो मैं उसको आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। मेरा पूरा प्रोजेक्ट थी थर्मल पर था, पर अभी नहीं बात करते हैं। सो दीज आर जियो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। तो आई थिंक कि आप कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। Now the some source of energy are renewable like sun, wind, flowing water, ocean, wood, biomass etc. And some energies are not renewable like coal. एक बार जल गया तो जल गया, आपको जो उसको हीट देना था, जो उसको जलना था, वो सब कुछ वो करके ख़त्म हो गया। Now you are left with only the ash, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अब एलपीजी का सिलेंडर एक बार आया, भर के आया घर में, आपने उसको यूज़ कर लिया 20-25 दिन में, उसके बाद वो खाली सिलेंडर को आपको फिर से रीफ़िल कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैस जो वो जल गई आप उसको वापस ले जा कर के उसमें डाल देते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। आप रीफ़िल कराने के लिए वापस से दोबारा उसको एजेंसी पर भेजते हैं, एजेंसी से वो गोडाउन पे जाती है, गोडाउन के बाद वो फिर आपके प्लांट में जाती है, प्लांट में रीफ़िल होती है, फिर वापस आती है। तो इंस्ट्रूमेंट वही है, लेकिन उसके अंदर का एनर्जी वो ख़त्म हो गया ना। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड formed inside the earth from the remains of plants and animals after million of years. The fossil fuels are coal, petroleum, natural gases. Fossil fuels are not renewable sources of energy, so they should be conserved and used judicially. Judicially means विवेक का इस्तेमाल करते हुए। अब आपको यहाँ से अपनी आंट के घर जाना है जो कि मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर है आपके। अब आप उसके लिए कार निकाल रहे हैं और उसके बाद उसमें कार को बैक कर रहे हैं, फिर उसके बाद जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। सो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, इट्स नॉट अ वाइज। आप अपने विजडम का यूज़ कीजिए। आपको पता है कि थोड़ी दूर पे है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जा सकते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार कंज्यूम हो गया एंड दे शुड बी कंजर्व्ड एंड यूज जुडिशियली। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। they will, after burning the fossil fuels, they releases gases, harmful particle which eventually come to the air pollution, affects the soil and water, causes damage to building, corrosion of metals, dust particle, PM 2.5. PM means प्राइम मिनिस्टर नहीं, PM ढूंढिएगा, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं इसको। 2.5 दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम थी, अभी भी होती है, हर ठंड में आ जाती है। And they release a large amount of carbon dioxide which increases the temperature of the atmosphere and ultimately cause the greenhouse effect, और Paris climate agreement आपका successful नहीं हो पाएगा। So I think you have studied till now conventional source of energy, what are the non-conventional। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बुक से, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द वीडियोज़। I will post the video
PPT in the school app section. Okay, so I'm leaving you on this note. Thank you and Jai Hind. God bless you all.